کہ احرام ناک کے نیچے نہ ہو، ناک کے اوپر ہونا. اور دوسری بات مردوں کے لیے ناک سے لے کر گھٹنے تک ایک کمپلسری ڈھانپنا ہے. اور اس حالت میں ناک صاف رہیں گے، نہ اندر میں رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد احرام باندھ کر اس طریقے سے چادہ کھول دینے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. کرنا ہے وہ حج کی. اللہم انی اريد الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے، اس کو بار بار پڑھیں گے. جہاں جہاں یہ تلبیہ پڑھیں گے قیامت کے دن وہ گواہی دے گا کہ فلاں بندے نے فلاں بندہ نے میرے صحیح تلبیہ پڑھا تھا. تو جب یہ لبیک، اب یہ حج کا احرام آپ اپنی مسجد میں ہی یا اپنے گھر میں ہی احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے رہیں. تلبیہ پڑھتے وقت نانے کا دھیان ضرور رکھیں. عورتیں اپنے ہی لباس میں حج کا احرام باندھ سکتی ہیں. محمد خالد کا نظامی سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. تلبیہ ہم جو ہے خاص طور پر جب بھی چڑھتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے معنی سمجھ کر مرد بلند آواز سے، عورتیں دھیمی آواز سے تلبیہ پڑھیں. آپ لوگ پتہ نہیں بھوک زیادہ لگی شاید آواز نہیں نکل رہی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایسا ہی احرام کی پابندیوں میں آ گئے. احرام کی جو پابندیاں ہیں جیسے اس سے پہلے بتایا وہ تمام پابندیوں کا خیال رکھیں. خاص طور پر یعنی چپل ایسے نہ پہنیں جس سے یہ اگی ہوئی ہڈی چھپ جائے، بلکہ 2 پٹی کے چپل پہن لیں. اس کے بعد بس میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ سے مینا جائیں گے. یہ مینا ہے، مکہ مکرمہ سے مینا 7-8 کلومیٹر ہے. مینا کے ٹینٹ ہیں. یہ ٹینٹوں میں 7 تاریخ کی رات کو یا 8 کو یہاں پر یہ اے سی کے ٹینٹ ہے پورے اور ایک ہی قسم کے ہیں. کوشش کریں کہ جیسے آپ ٹینٹ میں پہنچیں گے ٹینٹ میں آپ اپنے ٹینٹ کا نمبر وغیرہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں. اس کے بعد یہاں مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 4 نمازیں پڑھنے کے بعد ویسے فجر کی نماز بھی 9 تاریخ کی فجر بھی پڑھنا ہے، لیکن لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے آج کی رات میں مینا سے سیدھے عرفات لے جاتے ہیں. مینا سے عرفات جاتے ہیں. یہ مینا سے عرفات 10 سے 12 کلومیٹر، اگر دور سے جائیں گے تو 16 کلومیٹر. یہاں سے آپ یہاں آئیں گے. یہ 9 تاریخ کا دن، یہ عرفات کا دن ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ،
के दर्दों के बराबर हो जाए, अगर इनके गुनाह बारिश के दर्दों के बराबर हो जाए और इनके गुनाह दरख्तों के पत्तों के बराबर हो जाए, इनके गुनाहों से जमीन भर जाए और गुनाह बढ़ते बढ़ते आसमान को छूने लगे, तब भी मैंने तमाम के गुनाह माफ कर दिया। क्योंकि अराफात का मैदान जो है पूरी दुनिया से, पूरी ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, पूरी दुनिया के 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस मैदान में मिलेंगे। ये अराफात का मैदान है, ये मैदान पूरे के पूरे इस हालत में मिलेंगे और सब के सब मर्द, औरत, जवान, बूढ़ा हर एक मानता रहेगा। अगर पहुंचकर उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो हम जमा करके पढ़ेंगे, वरना यहाँ भी जैसा ही सूरज छूट तो अराफात से सीधे मुजल्लिफा, अराफात से मुजल्लिफा के बाउंड्रीज के जो रोड है वो लाइट ग्रीन में जो है वो है। तो आज 9 तारीख को दिन अच्छी 9 तारीख को मगरिब की ईशा की नमाज ईशा के वक्त में मुजल्लिफा में आकर पढ़ेंगे, चाहे जितनी देर हो जाए। यहाँ जब पहुँच जाए तो पहले मगरिब की नमाज पढ़ें, उसके बाद ईशा की नमाज, उसके बाद मगरिब की सुन्नत, नफिल ईशा की सुन्नत, नफिल वितर यहाँ पढ़ने के बाद आज रात यहाँ थोड़ी देर आराम कर लें। आराम कर लेने के बाद उसके बाद फिर हम जो है यानी सुबह तक आज की रात मुजल्लिफा की रात यानी 9 दिन की रात मुजल्लिफा में गुजारना है। यहाँ रात गुजारने के बाद मुजल्लिफा का जो असल वक्त है वो फजर से शुरू होता है। नियत के बाद या उससे पहले औरत नापाक हो जाए हालत में ही तलबिया पढ़ सकते हैं, इहराम में दाखिल हो सकते हैं और जिक्र कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, लेकिन आपको तवाफ नहीं करना है, कर लेना है। कोशिश करें पूरे सफर में पर्दे का ख्याल रखें। हम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से 2 साल के बाद इस साल हज को जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में अब हमारी सोसाइटी थोड़ी बहुत खिदमत कर रही है, अल्लाह हमारी खिदमत को कबूल करे। इस साल हमारे पास 30 आदमी जा रहे हैं मतलब आज होने के मिला के, और 27 और 28 को रवानगी है। ये फ्लाइट डेट्स है। जगन मोहन रेड्डी हाजियों को 2 लाख से कम इनकम वालों को 30,000, 2 लाख से ज़्यादा इनकम वालों को 60,000 देने का ऐलान करे हैं। और हाजिया से हमारी गुजारिश है कि इस बार सबके लिए दुआ करें और आइंदा से हज ना बंद हो। हमें बहुत गम और फिक्र थी कि 2 साल से हज नहीं था, अल्लाह इस तरह इस साल से हज को बंद ना करे, हमारे और कंटिन्यू करे। यही उम्मीद के साथ हमें हाजियों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह हमें इस खिदमत को कबूल करे। हमें आदमी सोसाइटी से जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी आदमी से जो है इस साल जो है 30 का हाजियाँ जा रहे हैं, जिसमें 8 या 10 से जो औरतें हैं, 14 या 16 जो है मर्द है। ये सब जो है हैदराबाद से जो है रवानगी हुई 27 और 28 तारीख को जो है इंशाल्लाह उनके प्लान है, उसमें लोगों की रवानगी होगी। हम सब उन लोगों से हाजियों से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे लिए, अपने लिए, मुल्क के लिए, शहर के लिए, स्टेट के लिए वहाँ पर जो बारगाह इलाही में दुआ करें। నేను కోరుతా ఉన్నాను. అందుకే ఏదన్నా ఈరోజు పోయే వాళ్ళందరూ కూడా పోయి క్షేమంగా పోయి లాభంగా తిరిగి రావాలా. మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోసం కూడా దువా చేయాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. మా కోసం కూడా మన ఆంధ్ర కోసం మన వాళ్ళ పోతారు శాంతి ఉండాలని చెప్పేసి దువా చేయాలని, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా శాంతిగా ఉండాలని చెప్పేసి దువా చేయాలని చెప్పేసి మా మీద కూడా దువా చేయాలని చెప్పేసి కూడా అడగడం జరిగింది. చాలా సంతోషం ఇది. ఈ ప్రోగ్రాం రావడం కూడా మా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी खुशकिस्मती है
आज हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेबल एमएलए साहब साई प्रसाद रेड्डी साहब हमारे एक हज कैंप में यहाँ पर मौजूद थे। आज ख़ास तौर पे उन्होंने मुसलमानों के जज्बात का, एहसासात का और उनके दिल में जो तड़प थी उसकी एक तर्जुमानी की है। साफ साफ अल्फाज में साई प्रसाद रेड्डी साहब ने इस बात की मजम्मत की है कि कोई भी मज़हब हो, उसके कोई मज़हब के गुरु किसी की भी है ना, आप तौहीन करने का कोई हक़ नहीं है। उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि ऐसे एक्टिविटीज़ हिंदुस्तान में नहीं चल सकते, यहाँ पे तनाव पैदा होगा, एक दूसरे मज़हब में, एक दूसरे फ़िरक़ों में इख्तिलाफ़ात पैदा होंगे। साई प्रसाद रेड्डी साहब ने ख़ास अल्फाज में ये कहा कि वो सारे इस मसले में बिल्कुल अगेंस्ट हैं जो कोई भी ऐसे रिमार्क किए हैं, और उन्होंने कहा कि उनको कानून के हिसाब से, लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से जो कुछ भी उनसे डील करना है गवर्नमेंट डील करे। और ख़ास तौर पर साई प्रसाद रेड्डी साहब ने कहा कि इस मामले को संजीदगी से लेकर पीस, अमन और सब लोग मिल के रहने की कोशिश करें। और हम लोग सारे मुसलमानों की तरफ से मैं साई प्रसाद रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ख़ास तौर पे जब हमारे दिल जल रहे थे, हमारे दिल और दिमाग इतना पेचीदगियाँ हो गए थे, उस मौके पर आकर ऐसे मौके पर मुसलमानों का साथ देकर उनके जज्बात एहसास की तर्जुमानी कर उनको साथ दिया, सच क्या है और गलत क्या है कहा है, और इसका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।